آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے۔ جن کی کرپشن پر دنیا بھر میں کتابیں لکھی گئیں، ان کی پارٹنرشپ لگی تو پاکستان پھر پیچھے چلا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کنونشن سے خطاب، کہا اس سارے کچھ کا ذمہ دار ایک شخص ہے۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، ہر طرف مسائل ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کراچی میں پارٹی کے خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے۔ کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے، جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا 90 کی دہائی کے بعد پاکستان زوال کا شکار ہوا، بحران مزید بڑھے گا، ہم مقابلہ کریں گے۔ 20 سال یہی دو خاندان ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے، ہم نے تو اس بحران کی 7 ماہ پہلے نشاندہی کر دی تھی۔ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا، 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ برِ صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی، تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ عمران خان نے کہا پی ڈی ایم کی ساری ترقی اشتہاروں اور پروپیگنڈے میں ہوتی ہے، صاف و شفاف الیکشن سے ہی شفاف حکومت بنے۔ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے مضبوط حکومت چاہیے۔ اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور واحد آپ کی جماعت ہے، یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی، اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا۔ عمران خان نے کہا قوم ہمارے ساتھ ہے اور ہم تیاری کر رہے ہیں، پاکستان کو مشکل وقت سے کیسے نکالنا ہے۔ سیاسی انجینئرنگ نہ کی گئی تو تب ہی ملک میں شفاف انتخابات ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے زر مبادلہ ذخائر زیادہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 نہیں 10 ارب ڈالرز ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے واجب الادا قرض وقت پر واپس کرنے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بہت جلد دوبارہ مستحکم ہوں گے۔ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان کے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ لچکدار پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کروں گا۔ سیلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالوں گا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانیت ایک اہم موڑ پر ہے۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان گائرہ کا موجودہ دور حکومت میں مہنگائی بڑھنے کا برملا اعتراف۔ ہمارے دور حکومت میں مہنگائی بڑھی، دیکھنا ہوگا مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے۔ اس حکومت نے ایسے فیصلے کیے جس سے مہنگائی ہوئی، ساتھ ہی مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو بھی ٹھہرا دیا۔ کہا عمران خان کے دور پر مہنگائی عروج پر تھی، عمران خان نے ملک کو عالمی سطح پر تنہا کیا، وہ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمران خان سے حکومت نہ لیتے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ ملک کے حالات مشکل ہیں تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ملک کے حالات اچھے ہیں۔ میں تو ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے یا کم کرنے آئے تھے، ہمارے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ ہو گئے، یہ بات درست ہے۔ تیل مہنگا ہوا ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، کیوں نہ کہے ایسا ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا ہمارے دور میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی بدولت یہ مہنگائی آئی ہے؟ اور جو سب سے بڑا مہنگائی کا ذمہ دار ہے، جو سب سے بڑا سٹاکیا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ جو نہ خود مہنگائی کرتا ہے پہ بھی یہ کہی جا رہے ہیں۔ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا، ہمیں ایسے ان حکومتوں کو بھی پوچھنا ہوگا
अब महंगाई नहीं ठगाई मार्च हो सकता है। सियासी पंडित शेख रशीद ने इत्तेहादी हुकूमत को तंबीह कर दी। ट्वीट में लिखा, 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने के लिए रोड मैप का भी मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा कि अब महंगाई की जगह ठगाई मार्च हो सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 से 5 अरब डॉलर रह गए, जो 20 रोज से कम का इंपोर्ट है। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। कुछ दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। शेख रशीद ने हुकूमत से 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप भी मांग लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बना दिया। पाकिस्तान में हर 5वां शहरी डिप्रेशन का शिकार है। इसहाक डार ने डॉलर की कीमत कम कराने का दावा किया था, लेकिन डॉलर को पर लग गए। हिरोशिमा तबाह हो गया, दोबारा आबाद हो गया, लेकिन ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। मुल्क भर में आटा बहरान ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। आए दिन आटे की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हाल हैं। चक्की वालों की भी मनमानियां जारी हैं। मुनाफाखोरों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर महंगाई का कड़ा वार। महंगाई करते अवाम अब हुए आटे के लिए ख्वार। मुल्क भर में आटा सोने के भाव बिकने लगा। गरीब अवाम को अब 2 वक्त की रोटी की भी फिक्र सताने लगी। गंदम और आटा महंगा होते ही मुनाफाखोरों की बराई। देखते ही देखते महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। शहर इक़्तिदार में फी किलो आटा 160 रुपए तो लाहौर में 150 रुपए पर बिकने लगा। पिशावर, कोयटा और कराची समेत बड़े छोटे शहरों में भी आटे के निर्ख हाथ से निकल गए। चक्की वालों ने भला कहाँ पीछे रहना था, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। चक्की का देसी आटा भी फी किलो 160 रुपए पर मिलने लगा है। 40 किलो चक्की आटे का रेट 6400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सबके चेहरों पर लिखा एक ही सवाल, अब अवाम क्या 2 वक्त की रोटी भी ना खाए? महंगाई, आटा भी नायाब हो गया। शहरी आटे के उसूल के लिए दरबदर होने लगे। घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद भी आटा है कि मिलता ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा कहाँ है कि बाज गश्त सुनाई देने लगी। महंगा ही मिले तो सही। सोने के भाव बिकते आटे के नायाब होने पर आवाम की पुकार। शहर शहर लगी मुट्ठी भर आटे के हसूल के लिए लंबी कतार। आवाम दिन भर हुए ख्वार मगर सब बेकार। किसी का काम न आया इंतजार। बारी आने पर हुआ आटा देने से इनकार। अरबाब इख्तियार सस्ता आटे के पॉइंट बनाकर बरी अल्जमा हो गए, मगर सेल पॉइंट का क्या करना जब आटा तो है ही नहीं। दिन भर की ख्वारी मगर फिर भी न आई बारी। बेशतर शहरी खाली हाथ ही घरों को लौटने पर हुए मजबूर। दुकानदारों ने भी आंखें माथे पर रख ली। अव्वल तो आटा देने से पहले दिखाए नखरे हजार, मगर दुगना रेट पर देने को तैयार। बस आवाम ही के मुकद्दर में लिख दिया गया होना दर बदर और ख्वार। मगर सबका है एक ही सवाल, आखिर इस सब का कौन है जिम्मेदार? अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा सप्लाई स्कीम में शहरियों की तजलील की जाने लगी। मर्द ख़वातीन की आटा खरीदने के लिए तवील कतारों में घंटों इंतजार की अजियत सहने पर मजबूर हैं। हुकूमत सप्लाई में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तियाब है, जबकि आम दुकानों पर यही 10 किलो आटा 1600 रुपए तक फिरोख्त हो रहा है। तफसीलात खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। गंदम की पैदावार में खुद कफील कहलाए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान में आटा नायाब होने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरी भी आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। आम दुकानों पर आटे के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे, जबकि हुकूमती आटा सप्लाई में शहरी लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं।
हुकूमत की जानिब से आटा सप्लाई के लिए शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ मुकामात पर मजमूई तौर पर 47 सप्लाई पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर हुकूमती नर्ख 648 रुपए में 10 किलो आटे का थैला तो दस्तयाब है, लेकिन सप्लाई पॉइंट्स पर शहरियों का जम्मे गफीर और लंबी लंबी कतारें बन जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मर्दों ख्वातीन की बड़ी बड़ी लाइनों में उम्र रसीदा अफराद भी खड़े हुए आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ये बात है कि वाकई बहुत लंबी लाइन लगी हुई यहाँ की। हम तो सुबह से आए हुए लेकिन मिल नहीं रहा कि कहीं भी नहीं मिल रहा। बस ये कि सालन के ऊपर हाथ याद करें कि लोगों पर बहुत मुसीबत में आए लोग। काफ़ी लोग कोई बच्चे लेके आए, कोई काम छोड़ के आ गए, सारी बात है। दुकानों पे अगर लेने जाए तो वो कहते हैं हमें आप 750 रुपये हमें देंगे तो हम आपको दे देंगे। यहाँ पे हम सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। गाड़ियों वाले कहते हैं आप जो है ना टाइम की हिफाजत करें। खातून बच्चे सारे यहाँ लाइनों पे खड़े हैं, लोगों पे ऊपर से वो आटा भी नहीं दे रहे, बदमाशी भी कर रहे लोगों पे। वफाकी दारुल-हुकूमत की आम मार्केटों की दुकानों पर आटा महंगे और मनमाने नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है, जहां फी 10 किलो आटे का थैला 1600 रुपए तक पहुंच चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम मार्केटों में भी आटे के नरखों को कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर में रोटी की कीमत सुनकर शहरी दिल थामने लगे। आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। पेशावर में रोटी की कीमत हाथ जलाने लगी। छोटी सी रोटी की भी कीमत बढ़ गई। नान भाइयों की मनमानियों ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी। कीमत क्यों बढ़ाई? नान भाइयों ने अपना ही रोना रो दिया। कहते हैं कीमत इसलिए बढ़ाई कि गंदम और आटा दोनों ही हुए महंगे। अगर आटा महंगा मिलेगा तो भला रोटी कैसे सस्ती देंगे? जिला इंतजामिया की दूसरी जानिब एक ही तान है कि रोटी की कीमत 20 रुपए है। नान भाइयों ने इसकी कीमत में अज खुद इजाफा कर रखा है। किसकी सुने और किसकी करे अनसुनी। जितने मुंह इतनी बातें, मगर अवाम को घाटा ही घाटा। हर तरफ एक ही पुकार, आटा 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 आटा। गंदम बहरान को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स का गंदम का योमिया कोटा दुगना कर दिया। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हंगामी इजलास में किए बड़े बड़े फैसले। सोमवार से फ्लोर मिलों को उनके अपने मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। मुल्क भर में भी कुछ भी सस्ता ना रहा। महंगाई माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर वार कर दिया। अशिया ज़रूरिया से लेकर हर चीज महंगी हो गई। सस्ते और बचत बाजार भी सस्ते ना रहे। महंगाई का होशरुबा तूफान आम आदमी को कर दिया परेशान। मुल्क भर में कुछ भी सस्ता ना रहा। क्या आम बाजार, क्या बचत बाजार और क्या इतवार बाजार, सब में एक ही बाज़गश्त, महंगाई महंगाई और महंगाई। मुनाफाखोर और महंगाई माफिया ने ऐसे पंजे गाड़े के शहरी घरों को खाली हाथ लौटने पर हुए मजबूर। मुल्क में बढ़ती महंगाई के सबब दालें, अंडे, गोश्त और सब्जी समेत तमाम ही अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। नए साल के आगाज पर हुकूमत के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ शहरियों के लिए सस्ते बाजारों से खरीदारी करना भी मुहाल हो गया। इतवार बाजार में दाल, चावल, घी और तेल के निर्ख हो गए दुगने तो सब्जियां और फल भी सोने में तोले जाने लगे। दूसरी जानिब अब शहरी मुर्गी की सूरत सस्ता गोश्त खाने से भी हुए महरूम। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 700 का हिस्सा छूने के करीब है। अंडों का तो मत ही पूछिए, दर्जन अंडे के निर्ख 300 के करीब पहुंच गए। अदरक और लहसुन 350, प्याज 210 रुपए फी किलो में बिकने लगे। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। अब हम क्या खाएं? बाजारों से खाली हाथ और खाली जेब लौटते शहरियों का बस एक ही सवाल। पीटीआई रहनुमा आटा बहरान को लेकर इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले ही खबरदार कर दिया था कि दिसंबर में आटा बहरान आएगा। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली, एक ज़राए मुल्क में आटे के लिए आवाम के मरने को ही डिफॉल्ट कहते हैं।
आटे बहरान पर कप्तान के खिलाड़ी भी खुलकर मैदान में आ गए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने दावा किया कि जुलाई में ही खबरदार कर दिया था, दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने हुकूमत के खूब तल्ले लिए और कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रहे और अब बाकी मामलात की तरह आटे का ये बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। तर्जमान वजीर आला और पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर दी। बोली, अगर एक ज़राई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। आटे के लिए एक शहरी की जिंदगी जाने का हवाला देते हुए कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए भगदड़ मचने से जान की बाजी हार गया। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। जाली हुकूमत के नाअहल वुज़रा के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, साजिशें अब भी हो रही हैं। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रैली के शुरा से खिताब, कहा शहर कराची अब नए दौर में दाखिल हो गया है। कराची पूरे पाकिस्तान और मुल्क की मेशत को चला रहा है, मगर कराची का कोई वारिस नहीं। कितनी लाशें उठाओगे? 2 करोड़ 20 लाख जवान हैं, सबको नहीं मारा जा सकता, सबको बाहर नहीं भेजा जा सकता, सबको समंदर में नहीं फेंका जा सकता। हमें रहना भी यहाँ है, पढ़ना भी यहाँ है, आगे बढ़ना भी यहाँ है और इंशाअल्लाह हमें इस हक से अब कोई महरूम नहीं करेगा। इसलिए अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो फिर 15 तारीख के इंतखाब को आप ये समझ कर वोट डालें कि नए दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। एक मर्तबा मुंतखब मेयर इस शहर में आ जाए, इंशाअल्लाह नक्शा तब्दील होगा। मुल्की सियासत में दिन गुजरने के साथ साथ हलचल में इजाफा। जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। अपने बयान में जहांगीर तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा आन चौधरी ने नई पार्टी बनाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान या चौधरी सरवर कोई नई जमात नहीं बना रहे। हम इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। उनका कहना था कि तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी है और रहेगा। इससे कबल सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद की थी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अभी पीपल्स पार्टी की क़यादत से इब्तदाई मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन से भी 2 मुलाकातें हुई हैं। अपनी जमात बनाने की बातें मीडिया में देखी हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई जमात लॉन्च करने की तैयारी की खबरें भी सामने आई हैं। बंद कमरों के फैसले अवाम को कबूल नहीं, पाकिस्तान के फैसले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेंगे। मरकजी रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं बल्ले के डर से इकट्ठे होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। ये लोग मिल जाएं तो अच्छा है, शिकार करने में आसानी होगी। तो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि इस मुल्क के फैसले होंगे तो वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। किसी बंद कमरे के फैसले पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। आजकल बल्ले के खौफ से साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। 0 जमा 0 जमा 0 0 ही रहता है। ये लोग मिल जाए साथ तो अच्छा है, 3-3 का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद का पंजाब में कप्तान की नंबर गेम पूरी ना होने का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान के खिलाफ पार्टी में भी नफरत मौजूद। इन्हें पता है नंबर पूरे नहीं, इसीलिए वोट नहीं ले रहे। ये शख्स वो है जिसने नौजवानों को इखलाकी पस्ती में धकेल दिया। इसने मुल्क में बदतमीजी को परवान चढ़ाया। इन्होंने बिल्कुल सरासर इनकार किया। वो इसलिए किया कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इनके लोग इनसे नाराज हैं। तो ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने कुछ नहीं छोड़ा। इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कद बलूचिस्तान में मजीद बढ़ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बलूचिस्तान के मजीद अहम सियासी रहनुमाओं ने पीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में साबिक विफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हुसनी, साबिक सूबाई वज़रा नवाबजादा हुसैन मरी और ताहिर महमूद शामिल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला रहजा और मीरुल्लाह बख्श रिंद भी पीपी का हिस्सा बन गए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम आदमी के हकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद पर कभी समझौता नहीं करेगी। बलूचिस्तान और पीपल्स पार्टी का एक तारीखी रिश्ता है। बलूचिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत तरीन फरीक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक के लिए हकीकी जिद्दोजहद की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें शुरू हो गईं, जबकि पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरती बूंदों ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। शुमाली इलाका जात में कितने दिन बर्फबारी होगी, महकमा मौसमियात ने बता दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जारी बारिश ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में आसमान से बूंदें बरस पड़ी। मौसम मजीद सर्द हो गया। कलात, ज़ियारत और किला अब्दुल्ला के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम के बालाई इलाकों ग्रेस, अड़ंगकेल, शोंतर और सरगन में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 1-2 रोज जारी रहने का इम्कान है। वादी कलाम में आसमान से रुई की मानंद सफेद गाले गिरे तो मंजर और भी निखर गया। मुल्क भर से आने वाले सयाहों की तो जैसे मन की मुरादें भर आईं। बर्फबारी के मुंतज़िर सयाहों के चेहरे खिल उठे और वो बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। बर्फबारी ने मरी के पहाड़ों को सफेद चादर से ढांप लिया है। ये दिलफरेब मनाजर देखने के लिए सयाह दूर दूर से मलका कोसार का रुख कर रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब को धुंधलकों ने परों में छुपा लिया। मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध के पर्दे के पीछे छुप गया। सुरमई धुंधलकों ने रास्ते भी पिन्हा कर दिए। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई है। धुंध ही धुंध, चहार सू पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। सुरमई मंजर से सारे मंजर धुआं धुआं हो गए। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पुलिस ने मुतादिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। धुंध के बाइस मोटरवे M2 इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक और M3 फैजपुर से दारखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चन्नीगोट तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद्दे निगाह 10 से 5 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश बरसेगी तो ही धुंध छटेगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।